So hello guys. So in this video, we will discuss about the how can we create how can we create a class and how can we declare a variable in the class and what type of variable and type of database in the Java. So for this, firstly we will create a simple Java project. So for this, we will create on file, then new, then project, then simple Java project. Okay, then we will give any name which you want, like test example. Okay, so for after this, click on next, then finish. Okay, so as we can see that uh, a project name is test example, and it contain a folder name like src. So inside the src folder, we will create a class new class, any class name like variable example. So as we can see that we have created a class name like variable example. Please note that the first letter of the class name, the first letter of the class name will always first letter of the class name will be in capital letter. Okay, this is a rule, like first letter of the class name will be kept in capital letter, like. Okay, so here we can see that in variable example v is in capital form. Okay, so as we can see that we have created a class. So inside the class we can also declare a variable like int a equal to. So we can see that we have declared a variable like int a equal to 9. So what is a variable? Okay, means variable ka hai. So we can say that a variable is a container which hold a value uh, when the Java program execute. Like we can also say that a variable is a name of the memory location. Like हम ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हम बोल सकते हैं कि लाइक जैसे हमने यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 9 लिखा, ठीक है, तो एक सिस्टम में एक मेमोरी बन जाएगी, मेमोरी में ये एज इक्वल टू 9 स्टोर हो जाएगा। ओके, और जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, मतलब जिस प्लेस पे स्टोर होगा, लाइक ए इक्वल टू 9 का डिब्बा बन गया, तो उस डिब्बे का नाम क्या रहेगा? ए रहेगा। ओके, सो एंड ये जो वेरिएबल रहेगा इंट टाइप का है। ओके, सो in the similar way we can also declare like float v equal to 2.4f, right? Right. So okay, so we have seen that what is variable. So in the Java there is three type of variable. Okay, so first is type of variable, VM. Yeah. Okay, so first is local variable. First is local variable. Okay, and second is instance variable, and third is static variable. So what is local variable, what is instance variable, and what is
static variable. So first we will discuss about what is local variable. So local variable are those variable which we declare inside a method. Okay, means which we declare inside a method. Okay. Okay. And instance variable are those variable which we declare inside a class. Okay, right? And static, like this is an example of instance variable. Okay, and static variable are those which we declare with static name. Okay, and it will uh, okay. So first we will discuss like okay. So like first we will like local variables. So suppose we will create a method inside a class like public variable method. Okay, public and variable का return type like void. Okay, so this is a method. Okay, this is a method. As so what is public, what is public, what is private, what is default, we will discuss in later video. Okay, and what is method we will also declare in the later video, right? How can we create a constructor method like. Okay, so अभी यहाँ पे हम केवल वेरिएबल समझ रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल, एंड हाउ कैन बी डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास. लाइक ये हमने एक मेथड बना लिया. ओके, सो लाइक हमने क्या बोला, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर आर दोस which we declare inside a method. Okay, so like int local var equal to 10. So ये हमारा क्या हो गया, लोकल वेरिएबल. मीन्स इस वेरिएबल का जो स्कोप रहेगा वो इस मेथड तक ही रहेगा. ओके, वी कैन नॉट एक्सेस दिस लोकल वेर आउटसाइड दिस मेथड. ओके, एंड instance variable which we declare inside a uh, uh, and instance variable which we declare inside a class. So this is an example of instance variable. Okay, variable. Okay, and static variable are those which we declare with the name of static. Suppose uh, uh, ये int है, इसके आगे हम static लगा देंगे तो ये हमारा एक static variable बन जाएगा. ओके, लाइक static f इक्वल टू या कुछ भी लिख देंगे 0. तो ये हमारा एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बन गया. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल. ओके, so we have seen that like
what is instance variable, what is static variable, and what is local variable. A local variable are those which we declare inside a method, and okay, and it contain the scope. Okay, and scope only inside the method. Okay, understand? Only within the method. Okay, within the method. इसका स्कोप जो है within means अगर हम इस लोकल वेरिएबल को बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं इस मेथड के बाहर, सपोज सिस्टम डॉट okay, so for this we should write public static void main string. ये हम आपको आगे बताएंगे कि स्ट्रिंग array args क्या है. Okay, like suppose we want to access this local variable here, so we cannot access this variable because as we have discussed that the scope only within the method means it contains the scope only within the method. So if you want to access like system dot out dot print, okay, suppose we want to access the local variable, then it will be give, yeah, it will give error. Okay, so we can say that there is a variable and there is error. Okay, so we cannot access the local variable outside the method means it contains the scope, it has a scope only within the method only. Okay, understand? So we have discussed it and how can we create a class. Okay, and how can we declare a variable inside a class, what type of variable in the Java. हाँ, एक चीज, अगर जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ये हम बताएंगे आगे कि इसका मतलब स्टैटिक का, पब्लिक का मतलब क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप कैसे क्या होता है, एंड ये एरे. अभी आप ये समझ लो हमने कोई क्लास डिक्लेयर करी, ठीक है, तो जब भी कोई क्लास आप रन करेंगे तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा मेथड ये वाला होगा. ओके, ओके, समझे? तो मीन्स जब भी फ्लो स्टार्ट होगा वो इस मेथड से फ्लो स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड स्टैटिक वेरिएबल क्या, एंड स्टैटिक वेरिएबल का एक और फीचर है कि स्टैटिक वेरिएबल लोड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग. मीन्स जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग ये स्टैटिक वेरिएबल आपके पहले ही रन हो जाते हैं. ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये स्टैटिक का एक फीचर है. और और ये केवल जब ही लोड होते हैं एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, मतलब एक बार ही लोड होंगे जब भी आपकी क्लास लोड होगी उसी टाइम इनमें वैल्यू असाइन हो जाती है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो ओके, सो नाउ we will discuss the what type of data type in the Java. Means data type is what? Suppose वे हमने क्या किया, कोई एक प्रोग्राम लाइक हमने क्या किया, एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया लाइक एक क्लास सपोज. ओके, सो सपोज व्हाट इज डेटा टाइप. डेटा टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप है. मतलब ये जो ए की वैल्यू है ये किस टाइप का है, ये इंट टाइप का डेटा है, तो डेटा टाइप. ठीक है, सो ये क्या है, लाइक जैसे हमने मैथ में देखा होगा कि आप लिखते हैं मतलब जैसे आप क्या लिखते हैं कि जो आपके ये जो जिसमें आप पॉइंट नहीं लगाते, लाइक ये हुआ आपका कोई नंबर है एक, ये हो गया आपका इंट, इनको हम जावा में बोलते हैं इंट. ओके,
सेम अगर कोई ये पॉइंट में है नंबर तो उसको हम लोग फ्लोट से डिक्लेयर करेंगे, लाइक सो वी विल discuss the data type. So for this, we will create a new class, okay, to understand the data type. Data type example, okay. So in the Java, पहले तो जावा में डेटा टाइप कितने होते हैं, तो इन दी जावा there are two types of data टाइप, ठीक है। तो पहले कौन से हो गए, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। एंड दूसरे कौन से हैं आपके, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हो गए हमारे, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे हो जाते हैं लाइक बूलियन, पहला तो बूलियन हो गया, ठीक है। इंट पहले हो गया बूलियन, ओके, बूलियन। तो पहला हो गया बूलियन, देन कैर, और बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ओके। These are the primitive type of data type. Of for non-primitive data type, like we will declare a class is also a non-primitive data type. Okay, we can say that array is also an array. We will discuss array in later video. What is array? We can say that आपने C में तो पढ़ा ही होगा array. तो array भी आपका एक non-primitive data type का example हो गया. Okay. इंटरफेस भी आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो डिफॉल्ट वैल्यू, और इन सब की ना एक डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है, लाइक ना, अब जैसे आपकी, जैसे आप बूलियन की बात करेंगे, जैसे हम लोग डिक्लेयर करके ही देख लेते हैं और प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट एंड हम बोलते हैं कि कोई क्लास में ये मेथड मेन होता है, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो लाइक हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बूलियन, बूलियन, बूलियन बूलवेर, ओके, ओके। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मींस अगर आप इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हम इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, लाइक ओके, प्रिंट कैसे कराएंगे, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, फॉर न्यू लाइन वी विल क्रिएट ln, ओके। लाइक हम इसको प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अभी क्या है कि ये इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं भी करते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, राइट। अभी जैसे इसको हम अगर बाहर डिक्लेयर करते हैं, लाइक क्लास के बाहर, ओके, सो
Okay, so it okay, so लाइक अभी जो एच टी एस, ये एच टी एस है, मीन्स जावा का एडवांस वर्जन है। ओके, सो ये आपको कुछ हिंट देता है कि प्लीज डिक्लेयर दी वैल्यू। मीन्स जब भी आप अगर जो आप जब आगे जब जावा सीख जाएंगे तो एक स्टैंडर्ड वे होता है कि आपको कम से कम एक चीजें डिफॉल्ट देनी होती हैं। तो अगर हम इसको, वैसे अभी ये एरर ये नहीं देगा अगर आप इक्लिप्स में इसको रन करते हैं, और अगर इसको अगर आप प्रिंट कराते लाइक, ठीक है, आप इसको प्रिंट कराते हो तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। मीन्स बुलियन में अगर हम उसको कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं वैल्यू तो उसकी फॉल्स होती है। ठीक है, सेम एज अगर हम बाइट की बात करें, बाइट, बाइट, ओके, बाइट है, बाइट की अगर हम बात करें डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है, सेम एज अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट पेयर भी 0 हो जाती है। ठीक है, सेम एज इंट, इंट की भी जो इंट वेर 0 हो जाती है। ठीक है, सेम एज लॉन्ग, लॉन्ग की भी, लॉन्ग की भी वैल्यू आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी डिफॉल्ट 0 L। ओके, सेम एज आप फ्लोट की बात करेंगे, फ्लोट की बात करेंगे तो ऐसे ही हम सेम फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट की जो होती है 0.0 L। सॉरी, एफ, फ्लोट में एफ लिखते हैं। ठीक है, और डबल, ठीक है, ये आपके बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, कि अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू पे जाएंगे तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब जैसे ये इंट है, ठीक है, अगर आप इंट की बात करते हैं, इंट का ही ये जो एक्सटेंडेड हो गया, लॉन्ग हो गया, मतलब इंट कोई एक वैल्यू हो गई, इंट से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है, एक इंट का ना एक डिफाइंड साइज होता है लाइक, ठीक है, तो अगर उस साइज से, अगर ये आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं इंट का है क्या साइज है, उस साइज से ज्यादा की वैल्यू होती है तो हम उसको लॉन्ग डिक्लेयर कर देते हैं। सेम एज फ्लोट और डबल भी सेम होते हैं कि एक फ्लोट की एक डिफाइंड रेंज होती है, ठीक है, अगर उस रेंज से ज्यादा की वैल्यू है तो हम उसको डबल डिक्लेयर कर देते हैं। मीन्स डबल से उसको दिखाते हैं कि हाँ ये डबल टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई लाइक 0, इसकी फॉल्स डिफॉल्ट, ठीक है, इसकी 0 शॉर्ट, इसकी 0। ठीक है, तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। तो यही थे आपके वेरिएबल एंड डेटा टाइप इन द जावा। सो in the next video we will declare about, we will discuss about the what type of modifier in java। ठीक है, मींस पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या है, और मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, वी विल डिस्कस इन लेटर। थैंक यू, बाय।